A very good morning, BBPians. How are you all? All fine. Very good. Stay home. Be safe, children. Now, children, class third. In previous class, we discussed EVS chapter number first. Now, in this class, we discuss chapter number second. That is peoples with special needs. So, all of you have your book. Now, all of you take out your EVS books. Now, third class, this is your EVS book. All of you take out. Now, page number 15. Chapter number second, third class. Now listen this carefully, people with special needs. Now in this chapter we discuss the special needs, those people who need a special care. Now see here children, people needing special care. Which people need special care? Now see, most of us are lucky to have good health. Means we have lucky, we have good health, because there are lots of people who has their abilities, disabilities students. Now thank to God, because we are healthy and our health are good. We can see, speak and do our most work ourselves. हम अपने कामों को खुद से करते हैं, देख सकते हैं. But there are many people who cannot see, hear or speak. लेकिन कुछ ऐसे peoples होते हैं जो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं. They are called people with special needs. They peoples are known as special need peoples. So underline this word, people with special cares. Clear children? Those people who cannot see, hear or speak, they call people with special needs. Okay children, now see, such people need special cares, attention, symptoms and affections. Means these people, those who have special need, those who cannot see, hear or speak, they need special care, attention, sympathy and all, because they have some disabilities. Okay children, now take out page number 16. Besides such people, special care and attention is also needed for old people, sick people and orphans. ये लोग तो होते ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा स्पेशल केयर की किस किस को ज़रूरत होती है? ओल्ड पीपल्स को, बूढ़े लोगों को, सिक पीपल्स को, जो बीमार होते हैं, और जो ऑर्फन, जो अनाथ वाले बच्चे होते हैं. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल. फिजिकली मीन्स दे आर एबिलिटी टू फिजिकल, एंड मेंटल मीन्स दे सफ़र फ्रॉम मेंटल. ठीक है. वो कौन से पीपल होते हैं? सम पीपल्स आर अनलकी टू बी बॉर्न विथ सम डिफीट्स एंड डिफिशियंस इन देयर बॉडीज़. वो लोग बहुत अनलकी होते हैं जो जिनको पैदा होने से ही उनके अंदर वो डिफेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में. सम एक्योर दीज डिफेक्ट्स बिकॉज ऑफ इलनेस. ये क्यों होता है उनको? बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से एंड इंजर्ड की वजह से. एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल टू यूज सम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी और सेंस ऑर्गन्स एज अदर. इसकी वजह से क्या होता है, इसका क्या परिणाम होता है कि वो अपने कुछ पार्ट को यूज़ नहीं कर पाते अपनी बॉडी के अंदर. हैंस दे आर अनेबल टू सी. वो ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और मूव प्रॉपरली ना मूव सकते हैं. दीज आर फिजिकली चैलेंज पीपल. इनको कौन से पीपल्स बोलते हैं? फिजिकली चैलेंज पीपल. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी नेक्स्ट, पीपल सफरिंग फ्रॉम some mental deficiency or disorder are called mental challenge peoples. Those peoples who have mentally challenged, those who have mentally disorder or deficiency, these people known as mentally challenged people. दिमाग से जिनकी प्रॉब्लम होती है. Such physical और mental challenge people need all our sympathy, attention and care. जो ऐसे लोग होते हैं जिनको फिजिकली भी और मेंटली भी प्रॉब्लम होती है, इनको हमें बहुत केयर और अटेंशन देने की ज़रूरत होती है. सम वेज टू हेल्प दैम. हमें उनको मदद करनी चाहिए. क्लियर चिल्ड्रंस? नाउ सी, हमें कौन कौन सी उनको मदद करनी चाहिए? डोंट लाफ एट और ट्रीज हिम. कभी हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए, ना मजाक उड़ानी चाहिए. स्पेंड टाइम विद दैम एंड मेक दैम फील वांटेड. उनके साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए और उन्हें ऐसा फील कराना चाहिए कि उनके लिए कोई है. नाउ थर्ड, प्ले विद दैम एंड मेक दैम अ पार्ट ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़. उनके साथ हमें खेलना चाहिए और उनको डेली एक्टिविटी में हमें उनके साथ पार्ट लेना चाहिए. ठीक है. नाउ प्ले दैम इन देयर डेली कोर्स. हमें उनके डेली वर्क में उनके साथ हेल्प करनी चाहिए. ठीक है चिल्ड्रन. नाउ सी, इनकरेज दैम टू गो टू स्कूल, स्टडी एंड हैव अ हॉबी. हमको उनको encourage करना चाहिए कि उनको स्कूल जाना चाहिए,
स्टडीज़ करनी चाहिए और उनके कोई हॉबी होनी चाहिए। नाउ सी, इनवाइट दैम टू बर्थडे पार्टीज़, हमें बर्थडे पार्टीज़ में इनवाइट करना चाहिए, पिकनिक्स में लेके जाना चाहिए, आउटिंग एंड अदर सच सेलिब्रेशन, और बहुत सारे सेलिब्रेशंस में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नाउ सी चिल्ड्रंस, पेज नंबर 70, डिवाइस विच हेल्प देम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको उनकी मदद कौन करता है? डिवाइस। कुछ डिवाइस होते हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। नाउ सी, बरले। बरले क्या होता है? ब्लाइंड पीपल रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट कॉल्ड बरले। ब्लाइंड मीन्स अंधे, जो लोग आंखों से देख नहीं सकते, वो किसकी मदद से पढ़ सकते हैं? बरले स्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। बरले वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैन लुइस बर्ले इन 1824। बर्ले को किसने इन्वेंट किया था? एक फ्रेंच का मैन था लुइस बर्ले, उसने 1824 में इसको इन्वेंट किया। इफ अ स्पेशल स्क्रिप्ट विच इज़ रिटन ऑन थिक पेपर विद 1 to 6 रेज डॉट्स। ये एक मोटे से थिक पेपर में लिखा गया है, कितने डॉट की मदद से? 1 से लेकर 6 डॉट की मदद से, ठीक है। ई सेट ऑफ रेज डॉट स्टैंड्स फॉर अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसमें हर स्टैंड को एक अल्फ़ाबेट लिखा गया है। अ ब्लाइंड पीपल मूव हिज फिंगर ऑन दिस डॉट एंड इट्स एबल टू रीड। जो अंधे लोग होते हैं वो इस पे फिंगर रख रख के देखते हैं, तो इनकी मदद से ये लोग पढ़ सकते हैं। द मशीन विच does सच राइटिंग इन दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड बर्ले राइटर। जिस मशीन ने इसको लिखा है उस राइटर को क्या बोलते हैं? बर्ले राइटर। सी हियर देयर अल्फ़ाबेट चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ यू सी इन योर बुक देयर अल्फ़ाबेट A B C D। दिस इज द बर्ले स्क्रिप्ट, ठीक है, रिटन बाय फ्रेंचमैन लुइस बर्ले। ओके चिल्ड्रंस, नाउ अंडरस्टूड। दोज पीपल हु आर ब्लाइंड, जो देख नहीं सकते, विद द हेल्प ऑफ बर्ले स्क्रिप्ट दे रीड द अल्फ़ाबेट्स। क्लियर चिल्ड्रंस? नाउ सी, हियरिंग एड, जो सुन नहीं सकते उनके लिए कानों में सुनने के लिए मशीन, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द साउंड दस इनेबलिंग द यूजर्स टू हियर। इसमें ये किसकी आप क्या मदद करता है कि इसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, जिसकी मदद से जो बहरे लोग होते हैं वो सुन सकते हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट हेल्प टू दोज हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग और डीफ। जिनको प्रॉब्लम है ना सुनने की, वो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। नाउ सी, डिफरेंट हियरिंग एड्स लाइक बॉडी वॉर्न बिहाइंड द ईयर एंड आइज ग्लास एड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। आज बहुत सारे हियरिंग एड्स निकल गए हैं मार्केट में, जिसकी मदद से लोग हाँ सुन सकते हैं, जैसे कि बॉडी वार्म, बिहाइंड द ईयर कान के पीछे लगाते हैं, आई ग्लासेस एड्स, ये कुछ ऐसे एड्स हैं जिसकी मदद से लोग सुन सकते हैं। नाउ क्रचेस एंड वॉकिंग स्टिक्स, जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए क्रचेस निकली है, वॉकिंग स्टिक्स निकली हैं। नाउ सी हियर, पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन मूविंग अराउंड यूज क्रचेस, आल्सो कॉल्ड मोबिलिटी एड्स। इनको कौन सी एड्स बोलते हैं? मोबिलिटी, ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते, जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है। दीज आर यूज टू सपोर्ट बॉडी वेट, ये बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं। पीपल आल्सो हैव अ चॉइस ऑफ यूजिंग वॉकिंग स्टिक एंड केन्स। बहुत सारे लोग वॉकिंग स्टिक से और कैन की मदद से क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप रोड पे जाते होंगे तो कई लोगों को ऐसी 2 लकड़ियां हाथों में ली हुई होती है, जिसकी मदद से वो लोग चलते हैं। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है चिल्ड्रंस? देखिए, यूज ऑफ फैक्चुअल एक्सपीरियंसेस, बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु हैव स्पीकिंग एंड हियरिंग impairment is called sign language. Use of factual experiences mean finger experiences, body movement and gesture of communities, gesture, body movement, who having speaking, जिसको प्रॉब्लम होती है बोलने की और सुनने की, ठीक है, वो साइन लैंग्वेज की मदद से बोल भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नाउ सी पेज नंबर 18। नाउ ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग,
Whenever people are young and healthy, they are energetic and strong. जब हम जवान होते हैं, लोग जवान होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. As they become older, जैसे जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, they lose their strength and face a lot of healthy related issues. जैसे जैसे वो बूढ़े होते जाते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ भी खो देते हैं और उनका फेस भी डल सा हो जाता है. They cannot work for long and needed a lot of rest and nutritious diet. वो ज़्यादा लंबे समय तक काम भी नहीं कर सकते और उनको बहुत सारे रेस्ट की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन डाइट की ज़रूरत होती है. क्लियर चिल्ड्रंस, आपको समझ में आया? सीनियर सिटीजन्स कौन से होते हैं? एल्डरली पीपल, ठीक है, आर नोन एज सीनियर सिटीजन्स. नाउ चिल्ड्रन सी, ओल्ड पीपल्स नीड आवर अंडरस्टैंडिंग, कंसर्न एंड सपोर्ट. बूढ़े बड़े लोगों को हमारी काय की ज़रूरत होती है? समझ की, कंसर्न की और सपोर्ट की. एज दे आर नॉट एबल टू डू लॉट्स ऑफ थिंग देमसेल्फ, वो क्योंकि अपना काम खुद से नहीं कर पाते. दे नीड आ हेल्प, उन्हें हमें काय की ज़रूरत होती है? हेल्प की ज़रूरत होती है. वी कैन हेल्प दैम इन मैनी वेज, हमें उन्हें बहुत सी हेल्प करनी चाहिए होती बहुत से वर्क में. सम सच वेज आर, कुछ काम कौन से जिनमें हमें उनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, नेवर टू बी रूड टू दैम, लिसन टू दैम विद पेशेंस. कभी हमें उनके साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उनकी सारी बातें सुननी चाहिए चुपचाप से. नाउ सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए. स्पेंड इनफ टाइम विद दैम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए. टेक दैम टू द डॉक्टर, हमें उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. एंड वैन रिक्वायर्ड, जब उनको ज़रूरत होती है. गिव दैम देयर मेडिसिन ऑन टाइम, हमें उनको मेडिसिन भी समय पे देनी चाहिए. मेक दैम फील वांटेड, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि वो हमारे लिए स्पेशल हैं. रीड न्यूज़पेपर्स और बुक्स फॉर दैम, उनके लिए हमें न्यूज़पेपर्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए. दे आर नॉट एबल टू डू सो, जो नहीं कर सकते. अकम्पनी दैम ऑन देयर वॉक्स, हमें उनके साथ चलने फिरने में उनको कंपनी देनी चाहिए. ठीक है चिल्ड्रंस. नाउ सी, वी शुड ऑल्सो बी अटेंटिव टू सिक पीपल्स, हमें उनके साथ तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है जो सिक होते हैं, बीमार होते हैं. वी मस्ट स्पेंड टाइम विद दैम एंड कीप दैम इन अ हैप्पी मूड, हमें उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए और उनको अच्छे मूड में रखना चाहिए. देयर रूम शुड बी कीप क्लीन एंड कम्फर्टेबल, उनका रूम हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए. देयर फूड शुड बी सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, उनका खाना भी ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही जल्दी वो डाइजेस्ट कर सकें. ठीक है. दे शुड हैव देयर मेडिसिन ऑन टाइम, उनको मेडिसिन समय पे देनी चाहिए. दे मस्ट ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इनफ रेस्ट, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट भी करवाना चाहिए. चिल्ड्रन अंडरस्टैंड. नाउ सी पेज नंबर 19. होमलेस पीपल, ऑर्फन, जिनके घर नहीं होते, जो अनाथ होते हैं, उन बच्चों के लिए. ठीक है. एवरी सिटी इन इंडिया हैज़ अ पॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेड चिल्ड्रंस, मीन्स हमारी जो इंडिया की सिटी है उसमें बहुत सारे पॉल्यूशंस होते हैं जगहों पे. वी सी दैम वंडरिंग एमलेस एंड ड्रॉपिंग पैटी जॉब्स, हम देखते हैं कि लोग बाग ऐसे ही घूम रहे होते हैं जॉब्स के लिए, इनके लिए. दीज आर चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स एंड हैव नो फिक्स्ड होम, ये वो चिल्ड्रंस होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते और जिनके घर नहीं होते. दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स, उन्हें क्या कहा जाता है? अनाथ. क्या कहा जाता है? ऑर्फन्स, अनाथ. ठीक है. स्पेशल होम्स कॉल्ड ऑर्फेजेंस, जिन लोगों के लिए स्पेशल घर बनता है अनाथ बच्चों के लिए, उनको क्या बोलते हैं? अनाथालय. ठीक है. हैव बीन सेट अप फॉर देयर चिल्ड्रंस वेयर देयर नीड ऑफ फूड, हमें उन बच्चों के लिए करना चाहिए जिन बच्चों के पास खाना नहीं होता, क्लोथ शेल्टर्स, कपड़े नहीं होते. एंड एजुकेट आर टेकन केयर ऑफ, हमें उनको एजुकेशन देनी चाहिए. वी शुड डोनेट फूड, हमें उनको डोनेट खाना देना चाहिए, क्लोथ देने चाहिए, बुक्स देने चाहिए टू अनाथ. कहाँ पे देना चाहिए हमको? अनाथालय में. क्या क्या देना चाहिए? फूड, क्लॉथ, बुक्स, ये सब हमको देना चाहिए. So children understand this chapter, chapter number 19. Children understand. Now in this chapter we discuss about special peoples who need, those peoples who need special cares. How many people they need special care? Those people who are mentally and physically able, they need special cares. And also those people who are sick and old peoples. Children understand, those people who are orphans,
those people who have not their own homes, those people who are their orphans. Clear children? Now understand this chapter clearly. Now today's homework, read chapter number 2. In next class we discussed our next topic. Till then, bye student, take care, be safe, read chapter number 2. Okay children?